ایک غریب اور نادار آدمی جس کا نام بلال تھا مزدوری کی تلاش میں ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر رہا تھا۔ اتفاق سے ایک شہر میں اسے کچھ کام مل گیا اور وہ اللہ کی مہربانی سے زندگی گزارنے لگا تاکہ کچھ پیسے جائے۔ اچانک اسے مزدوری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس نے ادھر ادھر کام کی تلاش کی مگر کوئی کام نہ ملا، اس لیے مجبوراً بیٹھ گیا اور اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں کو خرچ کرنے لگا۔ دل میں سوچنے لگا کہ پرائے شہر میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، میری جمع شدہ رقم جلد ختم ہو جائے گی اور دوبارہ تنگ دست اور تہی دست ہو جاؤں گا۔ ماہ شوال شروع ہو گیا تھا اور میرا نام بھی بلال ہے، جو ایک اچھا اور نیک مہینہ ہے۔ بہتر ہوگا کہ اپنے شہر واپس چلا جاؤں اور باقی ماندہ رقم تجارت میں لگا دوں، اس طرح دوستوں کے ساتھ آرام سے رہوں گا۔ بلال نے اسی رات اپنا سامان باندھا اور رقم بھی اسی میں چھپا کر ایک گٹھری بنا لی۔ پھر اپنے ساتھی کے پاس گیا جو اسی طرح مسافر تھا اور ایک ہی کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ بلال نے اپنے ساتھی کو الوداع کہا اور شہر کے باہر مسافر خانے میں جا کر قیام کر لیا تاکہ دوسرے دن صبح کارواں کے ساتھ وطن روانہ ہو۔ رات کو دوسرے مسافروں کی طرح مسافر خانے کے صحن میں اپنی گٹھری کے پاس بیٹھ گیا اور مسافروں کی ہلچل دیکھنے لگا۔ اسی دوران اس کی نظر دیوار پر پڑی جہاں لکھا تھا، سامان کی حفاظت اور دیکھ بھال مسافر کی اپنی ذمہ داری ہے۔ بلال نے دل میں سوچا کہ بالکل درست کہتے ہیں، یہاں مسافروں کی بھیڑ ہے، ٹھیلے والے، گدھے والے اور تاجر کی آمد و رفت جاری ہے۔ اگر مسافر خانے کے مالک کی 40 آنکھیں بھی ہوں تو سب لوگوں کو نہیں پہچان سکتا، کیونکہ چور بھی تاجر کے لباس میں گھومتے رہتے ہیں۔ بلال اپنی جگہ بیٹھا دوسروں کو دیکھ رہا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اسے نیند آ رہی ہے۔ اس نے گٹھری کو قریب کھینچ لیا اور اس پر سر رکھ لیا، مگر اس نے سوچا کہ میں اس طرح صبح تک نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے گٹھری کی رسیاں اپنے ہاتھوں سے باندھ لی اور اس کے پہلو میں لیٹ کر سو گیا۔ صبح سویرے جب کارواں کی روانگی کا وقت ہوا تو بلال بھی اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ گٹھری کی رسیاں تو اس کے ہاتھوں سے بندھی ہیں مگر گٹھری کا کچھ پتہ نہیں، کیونکہ کسی چور نے رسیاں کاٹ دی تھیں اور گٹھری لے گیا تھا۔ بلال نے آنکھیں ملنے لگا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ خواب میں نہیں بلکہ جاگ رہا ہے اور چور اس کی جمع پونجی لے گئے ہیں۔ وہ ڈرا اور فریاد کرنے لگا، اے لوگو، کوئی شخص میری گٹھری لے گیا ہے، میری رقم چلی گئی ہے، میری گٹھری میں 1000 درہم تھے، مسافر خانے کا دروازہ بند کر دو، میں سب کی تلاشی لوں گا۔ باہر والوں نے یقین نہ کیا اور کہنے لگے کہ شاید یہ خود چور ہو اور افراتفری پیدا کرنا چاہتا ہو، مگر جن لوگوں نے اسے رات کو دیکھا تھا انہیں یقین تھا کہ گٹھری چور ہی لے گئے ہیں۔ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو ضرور پکڑ لیتا، مگر سب اپنے کام اور آرام میں مشغول تھے۔ مسافر خانے کے بھی لکھ رکھا تھا کہ سامان کی حفاظت مسافر کی اپنی ذمہ داری ہے۔ بلال نے مسافروں کا سامان اچھی طرح دیکھ لیا مگر گٹھری کا کوئی نشان نہ ملا، اس لیے اہل کارواں کہنے لگے، اکثر ایسا اتفاقاً ہو جاتا ہے، اب زیادہ غم نہ کرو، رقم دوبارہ مل سکتی ہے اور سامان دوبارہ خریدا جا سکتا ہے۔ جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں کوئی گاڑی کے نیچے نہ کچل لیا۔ سامان کی چوری ہونا بھی ایک سبق ہے، اس کے بعد حواس جمع رکھو گے، جب رقم زیادہ ہوتی ہے تو اس کی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ ہم راستے میں تمہاری مدد کر دیں گے تاکہ اپنے شہر پہنچ جاؤ، مگر بلال نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا تھا، اس لیے کہنے لگا، نہیں، خالی ہاتھ گھر اور شہر لوٹنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرا سفر کا پہلا قدم غلط ثابت ہوا، میں یہیں رہوں گا تاکہ اپنی رقم کی تلاش کروں۔ جب کارواں نے حرکت کی تو بلال نے دوبارہ اہل کارواں کا سامان دیکھا، مگر اس کی گٹھری کا کوئی نشان نہ ملا، اس لیے اٹھ گیا، مگر اللہ کی رضا کے لیے انہیں الوداع کہا۔ وہ نہایت پریشان تھا کہ اب کیا کروں اور زندگی کا آغاز کیسے کروں۔ بلال شہر کی طرف لوٹا، مگر اس کا دل نہ چاہتا تھا کہ اپنی جائے رہائش پر لوٹے۔ وہ اپنے دوستوں کو کل رات الوداع کی چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں انہیں کس منہ سے کہوں گا کہ میں اپنی پہلی منزل پر گٹھری کی حفاظت نہ کر سکا اور میری ایک عرصے کی کمائی ضائع ہو گئی۔ شاید اس طرح میرا مذاق اڑائے۔ اگر میں صاحب ثروت کے ٹھکانے پر گیا تو دوسروں پر بوجھ بنوں گا، جبکہ ان کی زندگی مجھ سے بھی بدتر ہے۔ وہ غمگین اور پریشان چل رہا تھا، مگر اس کے پاؤں آگے نہ بڑھ رہے تھے۔
इसी दौरान वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गया, जहां उसने उस शहर में आते वक्त पहली रात गुजारी थी। बेइरादा दाखिल हो गया। वो थका मांदा था, इसलिए एक पट्टी पुरानी चटाई पर एक कोने में बैठ गया। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्योंकि हर तरफ खामोशी थी, इसलिए जल्द ही उसे नींद ने घेर लिया और वहीं लेट गया। मगर अभी वो ख्वाब बेदारी की हालत में था कि टिक टिक की आवाज से उठ बैठा। ये एक नाबीना गदागर था, जिसे बिलाल ने कई बार उस शहर में देखा था। नाबीना मस्जिद के किनारे खड़ा हो गया और कहा, ए भाइयों, ए बहनों। क्योंकि नमाज का वक्त न था और बिलाल के अलावा कोई शख्स वहां ना था, इसलिए उसने दिल में सोचा कि ये गुदागर क्या चाहता है। शायद रकम मांगता होगा। इसके अलावा इसका यहां क्या काम है? बिलाल ने कोई जवाब न दिया। इसी दौरान गदागर ने दोबारा अपना असा जमीन पर मारा और कहा, कोई शख्स यहां मौजूद है? बिलाल फिर भी खामोश रहा और सोचने लगा कि यहां कोई नहीं है। अगरचे बिलाल यहां मौजूद है, मगर वो तो खुद फोटी कड़ी का मोहताज है। जब गदागर को यकीन हो गया कि यहां कोई शख्स मौजूद नहीं, तो दूलान की तरफ बढ़ गया, जहां अक्सर बेघर मुसाफिर रात गुजारते थे। वहां पहुंचकर भी उसने लोगों को आवाजें दी, ए भाइयों, कोई शख्स मौजूद नहीं जो मेरी रहनुमाई करे और रास्ता बताए। बिलाल ने दिल में सोचा कि मालूम होता है गदागर इस जगह से वाकिफ है। अगर ऐसा ना होता तो सीधा दूलान की तरफ न जाता। मालूम होता है उस वक्त रात को किसी खास गर्ज व मकसद के लिए आया है। यह भी मुमकिन है कि शहर व बाजार छोड़कर गदागरी के लिए मस्जिद में आ जाए। शायद इसका कोई खास मकसद होगा। बिलाल ने चाहा कि उठकर उसकी मदद करे। जब वो दूलान के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि नाबीना अब भी लोगों को आवाज दे रहा है और कह रहा है, यहां कौन सो रहा है? मुझे वुजू करा दो। बिलाल ने दिल में सोचा कि बस बेचारा नमाज पढ़ना चाहता है, बेहतर होगा कि उसकी मदद करूं। बिलाल भी बगैर आवाज दिए दूलान में पहुंच गया और चाहा कि नाबीना के सवाल का जवाब दे, मगर किसी मसलहत की वजह से खामोश रहा। नाबीना ने दोबारा कहा, यह कौन है जो सांस ले रहा है मगर जवाब नहीं देता? बिलाल डर गया और अपने आप से कहा कि अब जबकि नाबीना सख्ती से बात कर रहा है तो मेरे लिए मुनासिब नहीं कि उसके करीब जाऊं। इसलिए अपनी सांस रोककर सुतून के किनारे खड़ा हो गया। गदागर कुछ आगे बढ़ा और कान खड़े कर दिए, मगर उसे कुछ सुनाई न दिया। जब उसे यकीन हो गया कि दूलान में कोई शख्स मौजूद नहीं, तो वापस लौटकर दूलान का दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे को अपने असा के सहारे रोक दिया, ताकि अगर कोई शख्स दरवाजा खोले तो असा के गिरने से खबरदार हो सके। नाबीना आगे बढ़ा और मस्जिद की मेहराब के करीब आ गया। निहायत तेजी से नमाज की थाली और चंद पट्टी पुरानी किताबें तख्ते से उठाईं और फर्श पर रख दी। फिर पत्थर की मदद से फर्श से ईंटें उखाड़ने लगा, जिससे छोटा सा गढ़ा बन गया। नाबीना ने गढ़े से एक चमड़े की थैले निकाली और जेब से कुछ निकालकर थैले में रख दिया और दोबारा गढ़े में डालकर उस पर ईंटें और फर्श बिछा दिया। फर्श के कोनों को अच्छी तरह देख लिया। नमाज की किताबें और दूसरी चीजें भी तख्ते में रख दी और कुछ देर बैठकर दूलान में आ गया और खामोशी से लेट गया, ताकि अच्छी तरह समझ ले कि यहां कोई शख्स मौजूद है या नहीं। जब उसे मुकम्मल तसल्ली हो गई तो जिस रास्ते से आया था उसी पर वापस चला गया। जब गदागर चला गया तो बिलाल कई किस्म के वसवसों में डूब गया कि जाकर देखूं कि थैले में क्या चीज है। वो आगे बढ़ा और उसी तरतीब से नमाज की थाली और किताबें एक तरफ रख दी और निहायत एहतियात से फर्श की ईंटें उखाड़कर एक तरफ रख और थैले को गढ़े से निकाल ली। इस थैले में 13 छोटी छोटी थैलियां मौजूद थीं, जो सब की सब रकम से भरी थीं। बिलाल ने थैले बगल में दबाई और फर्श को उसी तरतीब से हमवार कर दिया और मस्जिद के पिछवाड़े जा पहुंचा, जहां हर तरफ खामोशी थी। उसने रकम गिनी तो देखा कि उसमें 1300 दीनार मौजूद है। इसलिए कहने लगा, यह रकम तो मेरे असबाब के मुताबिक है जो चोर ले गया है। मेरी गठरी में भी 1000 दीनार नकद और दूसरे सामान की कीमत 300 दीनार थी। बिलाल सोचने लगा कि अल्लाह ने मुझ पर रहम किया है और इस रहमत के जरिए मेरी रकम वापस मिल गई है। मगर नहीं, अगर यह गदागर गायब फरिश्ता होता तो उसे फर्श में दफन न करता, बल्कि मुझे आवाज देता और कहता, आओ बिलाल, ये रकम ले लो। हाँ, अब मुझे क्या करना चाहिए?
अगर ये रकम ले लूं तो उसे लौटाने के लिए मुझे काफी वक्त की जरूरत होगी, और ये निहायत जुल्म होगा कि नाबीना गदागर की कमाई ले लूं। वो बेचारा गदागरी करता है और मैं उसकी रकम लेकर भाग जाऊं। अल्लाह को यह बात पसंद ना होगी। हाँ, अगर ये रकम बतौर कर्ज ले लूं तो कैसा होगा? वो तो गदागर है और लोग उसे रकम देते रहेंगे, मगर मैं तो गदागरी भी नहीं कर सकता। मुमकिन है उसकी जमा पूंजी और भी हो, जिसे अपने घर या किसी दूसरी जगह छुपा रखा हो। बहरहाल ऐसा मालूम होता है कि उसे किसी पर भरोसा नहीं, और ना ही कोई अमानत देने वाला जमा पूंजी छुपा देता है। बल्कि मैं इस रकम का ज्यादा मुस्तहिक होना गुनाह भी नहीं है। अगर मैं उसके पास जाकर कर्ज मांगता हूं तो मुझे साफ इनकार कर देगा। बस सरे दस्त बगैर इजाजत रकम ले लेता हूं, और जब मेरे पास ज्यादा रकम होगी तो उसे तलाश करके लौटा दूंगा। बिलाल ने थैले बगल में दबाई रखी थी। वो आगे बढ़ा और अपने आप को तसल्ली देते हुए कहने लगा, मामले का फैसला इतना जल्द मुमकिन नहीं। अल्लाह ने गदागर को इसलिए भेजा है कि मेरी मदद करे। यही वजह है कि अल्लाह ने मुझे थका दिया था और मस्जिद में बिठा दिया था ताकि अपना माल हासिल कर लूं। हाँ, जब कोई शख्स बुराई करता है तो खुद शैतान बन जाता है और अपने आप को धोखा देता है। इस तरह बिलाल ने भी अपनी दिलसूजी और परेशानी के बावजूद अपने आप को तसल्ली दी और वहां से चला दिया। उसने 300 दीनार से अपना जरूरी सामान खरीदा और 1000 दीनार अपने लिबास में छुपा ली। अब वो अपनी साबका मंजिल पर ना गया और उस शहर से निकलने की तैयारी करने लगा, मगर फिर भी अपने काम से सख्त शर्मिंदा और नाराज था। दूसरे दिन वो शहर में घूम फिर रहा था तो उसने नाबीना गदागर को लब गुंगुना रहा देखा, मगर निहायत खुशहाल दिखाई देता था। बिलाल ने उसका ताक़ुब किया जो मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। जब वहां पहुंचा तो गुज़श्ता रात की तरह अपना काम करने लगा और उसका हाथ गड्ढे में पहुंच गया। जब उसने देखा कि थैले वहां नहीं तो हाथ पेशानी पर फेरा, मगर कुछ न कहा। उसने जेब से छोटी सी थैले निकाली और वहीं रखकर फर्श हमवार कर दिया और दूलान में आकर बैठ गया। बिलाल ने दिल में सोचा, अगर वो इसी तरह बैठा रहा और गदागर ने मुझे तलाश कर लिया तो क्या होगा? उसने अपने आप को तसल्ली दी और कहा, मैं ज़ोहर तक यहीं रहूंगा। जब लोग नमाज के लिए आएंगे और आमद रफ्त शुरू होगी तो चला जाऊंगा। गदागर गहरी सोच में डूबा था। उसके साथ ही अपनी जगह से उठा और बाहर चला गया। बिलाल ने दिल में सोचा कि अब तो साबित हो गया है कि ये रकम मेरे लिए नहीं भेजी गई, मगर अब तो जो होना था सो हो चुका है। जब ये गदागर का मालिक बनता है तो उसे रकम की अभी जरूरत भी नहीं। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो एक दिन उसकी रकम लौटा दूंगा और अपना हिसाब साफ कर लूंगा। बिलाल मुसाफिर था, इसलिए अगले दिन एक कारवां के साथ अपने शहर लौट गया। उसने मुफ्त हासिल की हुई रकम तिजारत में लगा दी और अनाज की खरीद फरोख्त करने लगा। जब उसका काम चल निकला तो एक दुकान ले ली। इसकी तिजारत फलने फूलने लगी और बहुत जल्द मालदार बन गया। 2 साल बाद कारवां के साथ मक्का गया और हाजी बिलाल बन गया। अब उसने इरादा कर लिया कि गदागर को तलाश करूं और बगैर इजाजत ली हुई रकम वापस करूं और उससे माफी मांगूं। इसी तरह जब 3 साल गुजर गए तो एक दिन इत्तफाक से जब वो अपने काम काज के लिए जा रहा था तो उसने बाजार में वही नाबीना गदागर देखा। बिलाल ने दिल में सोचा, ये गदागर और इस शहर का मेहमान है। मेरा फर्ज बनता है कि उसके हाथ पर कुछ रकम रख दूं और पूछूं कि जब से तुम्हारी रकम गुम हुई है तुम्हें कैसे हालात का सामना करना पड़ा है। अगर मैंने अपना कर्ज अभी उसे वापस कर दिया तो खुश होगा, मुमकिन है उसे रकम की जरूरत भी हो। हाजी बिलाल ने अपने आप से कहा, जब लोग किसी के मकरूज होते हैं तो खुश नहीं रहते, मगर खुद पसंदी और गुरूर उन्हें मजबूर करते हैं और समझते हैं कि हमारे कर्ज खा को रकम की जरूरत नहीं, इसलिए कर्ज की अदायगी में ताखीर करते हैं। बहरहाल हाजी बिलाल आगे बढ़ा और गदागर के हाथ में एक सिक्का रख दिया और सोचने लगा कि जब मैं इससे असल मौजू पर बात करूंगा तो लाजमी तौर पर खुश होगा और कहेगा, नहीं जनाब, मेरी रकम वापस नहीं मिली। अल्लाह चोर पर लानत भेजे, और इस रकम की दूसरी नाफरमानियों का इजहार करेगा। इसके बाद पूछूंगा कि तुम्हारी रकम कितनी थी जो चोरी गई है। जब वो अपनी दास्तान बयान करेगा तो मैं भी कह दूंगा, खूब, अब इसको लानत मलामत ना करो, शायद चोर का इल्म हो जाए। अगर चाहो तो तुम्हारे दिल की परेशानी दूर करने के लिए तैयार हूं।
और इसी अंदाज के मुताबिक तुम्हें रकम दे सकता हूं। मुझे नेक दिल समझकर कबूल कर लो और मैं भी आसूदा खातिर हो जाऊंगा। हाजी बिलाल अपने ख्याल के मुताबिक शरीक ढूंढ रहा था, इसलिए गदागर से पूछने लगा, मैंने सुना है चंद साल कबल तुम्हारी रकम गुम हो गई थी, क्या मिल गई थी? मगर गदागर ने हाजी बिलाल के अंदाजे के मुताबिक गुफ्तगू न की और हाजी बिलाल की बातें सुनते ही उसका हाथ पकड़ लिया और फरियाद करते हुए कहने लगा, चोर चोर, ए लोगों मेरी मदद करो, मैंने चोर तलाश कर लिया है, आओ मेरी मदद करो, उस शख्स ने मेरी रकम चोरी की है। गदागर के शोर गल से कई लोग जमा हो गए और हाजी बिलाल परेशान होकर कहने लगा, ए शरीफ आदमी, खाम खां क्यों तोहमत लगाते हो? मैं तुम्हारा हाल अहवाल पूछ रहा था। अगर वाकई तुम्हारी कोई चीज गुम हुई है तो मैं उसकी तलाश के लिए तैयार हूं, मगर तुम तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हो। मैं तुम्हारी रकम के चोर को नहीं पहचानता। मैंने तो सिर्फ यही सुना था कि तुम्हारी रकम गुम हुई है, इसके अलावा मुझे किसी चीज का इल्म नहीं है। हां, अब मुझे बताओ कि तुम्हारी रकम कितनी थी? मगर रोने धोने और चलाने का तो कोई फायदा नहीं। क्या तुम अपनी भलाई नहीं चाहते? गदागर ने अपनी आवाज और भी बुलंद कर दी और कहा, मेरी रकम का चोर तुम हो। ए लोगों मेरी मदद करो, मुझे रकम की अभी जरूरत नहीं, मगर मेरी ख्वाहिश है कि इस बेइंसाफ चोर को काजी के यहां ले जाऊं और इससे मदद मांगूं। सिपाही को बुलाओ, दरगाह को इत्तला दो, मुझे काजी की अदालत तक ले जाओ। जब तक मेरा मकसद हासिल न हो उस चोर को माफ न करूंगा। इस दौरान कई लोग जमा हो गए थे जो कह रहे थे, मुमकिन है इस गदागर को शक हुआ हो, बहरहाल हकीकत मालूम हो जाएगी। इसके बाद हाजी बिलाल से कहने लगे, तुम फिक्र ना करो, यह गदागर का बाशिंदा नहीं बल्कि मुसाफिर है और 2-3 दिन से यहां आया है। मुमकिन है उसे धोखा हुआ हो, इसलिए उसे ज्यादा परेशान न करो। अगर काजी के यहां गए तो तुम्हें जमानत पर रहा करवा दिया जाएगा। सिपाही और दरगाह को इत्तला दे दी गई। सिपाही आए और नाबीना गदागर के पास ले गए। गदागर ने कहा, मेरी रकम चोरी गई है, अब मैंने चोर पकड़ लिया है और आपके सामने है, इसलिए बेहतर होगा कि उसे काजी के यहां ले जाऊं और अपना मुकदमा साबित कर दूं। हाजी बिलाल ने कहा, खाम खा मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। चाहता था कि उसकी मदद करूं, इसलिए कि मैंने सुना था कि उसकी रकम गुम हुई है। मेरी ख्वाहिश है कि महज अल्लाह की रजा के लिए उसकी परेशानी दूर करूं। मुझे क्या मालूम था कि मुझसे उलझ पड़ेगा, तोहमत लगाएगा और मेरी इज्जत बर्बाद करेगा। इस शहर में मेरा अच्छा खासा कारोबार है, मुझे चोरी की क्या जरूरत है? बेहतर होगा कि काजी के पास जाएं। मुझे भी उस शख्स से शिकायत है, मस्खराबाजी नहीं है। क्या गदागर की इमदाद करना गुनाह तो नहीं है? खाम खा के झगड़ों या शोर शराबे से रकम नहीं मिल सकती। दरगाह ने मजबूरन उन्हें काजी के पास भेज दिया। काजी ने दोनों की शिकायतें और बयान सुने और गदागर से कहा, मैं इसका जामिन हूं, अब यह भाग नहीं सकता, मैं मामले की तहकीक करूंगा। जब नाबीना, गदागर और बिलाल अलग अलग हो गए तो काजी ने दोनों के बयान अलग अलग लिए। हाजी बिलाल ने 2 बार अपने अल्फाज दोहराए और कहा, मैंने चंद बातें सुनी थीं, इसलिए चाहा कि उसका तमाम वाकयात दरियाफ्त करूं। अगर सच हुआ तो उसकी इमदाद करूं, मगर इस बेइंसाफ ने मुझे बेइज्जत करने में कोई कसर न छोड़ी, इसलिए अपने किए से पशेमान हूं। मुझे क्या मालूम था कि यह गदागर ऐसी हरकत करे। काजी ने गदागर से भी अलग अलग दरियाफ्त किया और कहा, तुम्हारा नाबीना होना कोई गुनाह नहीं है, मगर गदागरी कोई अच्छा पेशा नहीं है। तुझे उस शख्स का ममनून होना चाहिए था कि यह तुम्हारी मदद करना चाहता था। अगर तेरी रकम चोरी हुई है तो उसका मुतालबा कर सकते हो, मगर बगैर सबूत ऐसा नहीं किया जा सकता। तुझे कैसे मालूम है कि तेरी रकम का चोर यही शख्स है? गदागर ने कहा, जनाब, मेरे पास पूरा सबूत और दलील मौजूद है। मुझे मालूम है कि जो शख्स बुरा काम करता है, चाहे वो कितना ही बेइंसाफ क्यों ना हो, वो ज़हनी और दिली तौर पर परेशान रहता है, बल्कि ऐसा शख्स अपनी ज़ात से भी शर्मिंदा होता है और चारों तरफ हाथ पांव मारता है ताकि खौफ और डर से हासिल करे। इस तरह वो अपने आप को धोखा देता है, मगर अक्सर उसकी सोच उसके लिए बहुत बुरी बदनामी बन जाती है। गदागर ने कहा, जब मेरी रकम गुम हुई थी तो मैंने इरादा कर लिया था कि किसी से जिक्र ना करूंगा, इसलिए एक राज की तरह अपने दिल में छुपाए रखूंगा।
मैं जानता था कि ये राज मेरे और चोर के अलावा कोई दूसरा नहीं जानता, इसलिए अगर किसी ने इस मौजू की तरफ इशारा भी कर दिया तो खुद वही चोर होगा। मैं हर वक्त लोगों को दुआएं देता हूं ताकि अल्लाह मेरी रकम की हिफाजत करे। इस तरतीब से चोर भी समझता था कि शायद लोगों को चोर का इल्म हो जाए, और मैं भी नतीजा और अंजाम का मुंतजिर रहा। अगर ये शख्स चोर ना है तो इसे कैसे मालूम है कि मेरी रकम चोरी गई है, हालांकि मैंने आज तक किसी से जिक्र ना किया है। काजी ने कहा, बहुत उम्दा दलील है। इसके बाद हाजी बिलाल को अलग बुलाया और कहा, तुमने किससे सुना था कि इस गदागर की रकम गुम हुई है? हाजी बिलाल ने कहा, मुझे दुरुस्त याद नहीं है, अलबत्ता कई लोग कह रहे थे कि इसकी रकम गुम हुई है, बल्कि उसने खुद भी आपको बताया है। काजी ने कहा, हाँ, उसने खुद आज बताया है, मगर इससे पहले किसी से जिक्र ना किया था। अगर तुम्हें याद हो कि जिस शख्स ने तुझे यह वाकया बताया है तो उसकी निशानदही करो, इसके बाद तुमसे हमारा कोई वास्ता ना होगा। इस सूरत में हम तुमसे माफी मांगेंगे और बाजार में भी मुनादी करवा देंगे कि गदागर को शक हुआ था। इस तरह तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी। हाजी बिलाल ने कहा, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, इसलिए कि मुझे याद नहीं कि मैंने कहां से सुना था। काजी ने कहा, इस तरह तुम पर इल्जाम साबित हो सकता है। अब इसके दो रास्ते हैं, या तो तुझे नजरबंद रखा जाए ताकि मामला साफ हो सके, मगर तुम्हारी नजरबंदी से शोर शराबा हर तरफ फैल जाएगा, जो तुम्हारे लिए बहुत बुरी बदनामी होगी। हाँ, एक दूसरा रास्ता भी है कि तुम जो कुछ जानते हो उसका तदारुक करो और हमें चोर का पता बता दो, ताकि हम मामले की तह तक पहुंच सकें और रकम भी उसके मालिक को वापस मिल जाए। बहरहाल तुम्हारी भलाई यही है कि चोर की तलाश में हमारी मदद करो। हाजी बिलाल ने कुछ सोचा और काजी से कहा, मैं देख रहा हूं कि काम मुश्किल बनता जा रहा है। अब जबकि मामला यहां तक पहुंच गया तो सच्चाई से बेहतर कोई चीज नहीं है। मेरी जिंदगी की दास्तान यह है कि मैंने मस्जिद से उस दिन रकम उठा ली थी, इसलिए कि मैं अपने आप को मुस्तहिक समझता था और समझता था कि रकम कर्ज के तौर पर ली है। आज भी मेरा इरादा भलाई का था और चाहता था कि अपनी गलती की तलाफी करूं और हलाल करूं, मगर मुझे इतना मालूम न था कि मामला यहां तक पहुंच जाएगा। अब आप जो हुक्म दे मुझे मंजूर है। गदागर की रकम 1300 दीनार थी। अब मैं 1500 दीनार देने के लिए तैयार हूं, ताकि मामला दब जाए और मेरी इज्जत भी बच जाए। काजी ने कहा, बारुकल्ला, हमेशा निजात सच्चाई में होती है। अब अपनी बात मुख्तसर करो, इसलिए कि हमारे भी कई काम हैं। हाजी बिलाल से 1500 दीनार ले लिए गए। गदागर ने कहा, यहां तक तो काम दुरुस्त हो गया है। उन्होंने कहा, बहुत खूब, यह रकम ले लो और यहां दस्तखत करो या अंगूठा लगा दो। गदागर ने कहा, यह रकम मेरा माल है, मगर इस मामले में मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है, इसलिए जरूरी है कि तमाम किस्सा लिखा जाए कि उस शख्स ने फलां तारीख को मेरी रकम चोरी की है और अब वापस दे दी है, ताकि उस बेइंसाफ चोर को आपके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े और तमाम हाजरीन इस पर दस्तखत भी करें। काजी ने कहा, हम भी यही चाहते हैं, मगर अब जबकि तुमने रकम ले ली है तो तुम्हें हक नहीं पहुंचता कि यहां से बाहर जाकर लोगों से कहो और हाजी बिलाल को बदनाम करो। गदागर ने कहा, नहीं करूंगा, इसलिए तमाम वाकयात लिखे गए। रकम गदागर को दी गई और सब लोग चले गए। हाजी बिलाल ने भी सुकून का सांस लिया और दिल में कहा, बहुत बुरा मामला हुआ है, मगर अब आसूदा हो गया हूं। मगर दूसरे दिन गदागर फिर काजी की अदालत में खड़ा था और अपनी शिकायत बयान कर रहा था। वो कहता था, चोर को बुलाया जाए। इससे पूछा गया, ऐ शरीफा इंसान, अब तो मुकदमे का फैसला हो गया है। गदागर जब इस बात को तस्लीम करता है कि उसने 3 साल कबल रकम चोरी की थी और अब वापस की है, इसलिए किस्सा खत्म हो गया। गदागर ने कहा, मैंने उसे कर्ज न दिया था, मैं उस रकम से अनाज खरीदना चाहता था, मगर आज मुझे मालूम हुआ है कि 3 साल कबल के मुकाबले में अनाज की कीमत दुगनी हो गई है। मैं 3 साल कबल 1300 मिन अनाज खरीद सकता था, मगर अब इस रकम में 650 मिन अनाज मिल सकती है। इसलिए हाजी बिलाल को यह खसारा पूरा करना चाहिए, वरना मैं भी अपना मामला वापस लेता हूं और बाजार जाकर हाजी बिलाल से मामला खुद तय करता हूं। काजी ने कहा,
मेरे ख्याल के मुताबिक तुमने रजामंदी जाहिर कर दी है और मुकदमे का फैसला हो चुका है। अगर तुम जिद करते हो तो उसे बुला लेते हैं, ताहम खाम खां झगड़ा मोड़ लेने में कोई फायदा नहीं है। गदागर ने कहा, मैंने असल रकम वसूल कर ली है और रसीद भी दे दी है, मगर मेरे ख्याल में अब तक गाय का सर मटके में फंसा हुआ है। हाजी बिलाल आया और कहने लगा, यह शख्स अब क्या कहता है? उन्होंने कहा, यह कहता है कि मैंने ये रकम अनाज खरीदने के लिए जमा की थी, मगर अब अनाज की कीमत दुगनी हो गई है। हाजी बिलाल बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, मैं इज्जतदार शख्स हूं और एक आम गदागर से उलझना मैं चाहता। चलो इसका यह मुतालबा भी तस्लीम कर लेते हैं, वो रकम मुझे वापस दे दे और 1300 में अनाज लेकर चला जाए। अनाज की बारबरदारी का किराया भी मैं अदा कर दूंगा ताकि अपने शहर ले जाए। गदागर ने कहा, मैं किसी चोर से कोई चीज नहीं खरीदता और अपनी हलाल रकम हराम ना करूंगा। मैं अपना खसारा नकद की सूरत में पूरा करूंगा और समझूंगा कि अपना हक ले लिया है। हाजी बिलाल बहुत परेशान था, मगर रुसवाई की रोकथाम भी जरूरी समझता था, इसलिए कहने लगा, आओ बाबा, ये 1300 दीनार मजीद ले लो। अब जाओ और हाजी बिलाल के हक में दुआ करो। दोनों ने सुकून का सांस लिया और चले गए। दूसरे दिन सुबह नाबीना गदागर फिर आ गया और कहने लगा, मुझे रकम मिल गई है, इसलिए चाहता हूं कि अनाज खरीदूंगा। गदागर ने कहा, मुझे हाजी बिलाल से शिकायत है। काजी ने कहा, तुझे अब कौन सी शिकायत है? तुमने तो खेल तमाशा बना लिया है और रोजाना नया मुकदमा दायर कर देते हो। मुकदमे का फैसला हो चुका है, अब तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि हाजी बिलाल की जात से नाजायज फायदा उठाओ। वो शरीफ इंसान है, इसलिए उसने तुम्हें दुगनी रकम दे दी है। हां, अब क्या कहना चाहते हो? गदागर ने कहा, जब तमाम मुतालबा तस्लीम कर लिए हैं और मुझे दुगनी रकम दे दी है और आपके मुताबिक वो शरीफ और अच्छा इंसान भी है, मगर क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मुझे हक नहीं पहुंचता कि आसूदगी से जिंदगी गुजारूं? क्या मेरी पेशानी पर लिखा है कि हमेशा गदागरी करूं? क्या मैं अनाज की खरीदो फरोख्त ना करूं और इज्जत से जिंदगी गुजारूं ताकि अच्छा इंसान बनूं? उसे कहा गया, क्यों नहीं, तुम्हें भी हक हासिल है। हम भी चाहते हैं कि तुझे यही बातें समझाई जाएं कि गदागरी ना मुनासिब और ना शरीफाना पेशा है। इससे सिवाय सुस्ती और बेशर्मी के कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि सेहतमंद लोगों को इस पेशे से जुर्माना भी किया जाता है। हां, तुझे अपनी रकम मिल गई है, जाओ और अपने काम में लग जाओ और गदागरी ना करो। अब हाजी बिलाल से तुम्हारा क्या लेना है? गदागर ने कहा, यही हाजी बिलाल मेरी बदबख्ती का सबब बना है। मैं 3 साल कबल चाहता था कि गदागरी से हाथ धो लूं और अनाज की फरोख्त करूं, मगर यह बेइंसाफ चोर मेरी जमा पूंजी ले गया, इसलिए मुझे मजबूरन मजीद 3 साल गदागरी करनी पड़ी। इस दौरान कई तकलीफ का सामना करता रहा और चोर की गिरफ्तारी की फिक्र में मुब्तला रहा। हां जनाब काजी, मैं 3 साल तमाम लोगों से बद्दुआ करता रहा। इस तरह मेरी उम्र के 3 कीमती साल तबाह हो गए हैं। मैंने हाजी बिलाल से कोई बुराई न की, मगर उसने तो मुझसे बुराई की है। बेशक उसने मेरी रकम लौटा दी है, मगर मेरी उम्र के 3 साल न लौटाए। मेरे 3 सालों की परेशानी की तलाफी न की। उसने मेरे 3 सालों की बेखाबियों की गदागरी का बोझ मेरी गर्दन पर डाल दिया। जनाब काजी, अब मैं अपने 3 सालों के गैर मुनासिब और गैर शरीफ कामों के जुर्माने का दावा करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा यह खसारा पूरा किया जाए और यह खसारा हाजी बिलाल अदा करे या मेरी उम्र के 3 साल मुझे लौटा दे। काजी और उसके साथी हंसने लगे और हाजी बिलाल को हाजिर होने का हुक्म दिया। काजी और उसके साथियों ने हाजी बिलाल से कहा, देखो गदागर की बातें तुम्हारे ख्याल में दुरुस्त हैं या नहीं? हाजी बिलाल को एक तरफ अपनी इज्जत का खतरा महसूस हो रहा था और दूसरी तरफ जवाब देने के लिए उसके पास अल्फाज न थे, इसलिए मजबूरन कहने लगा, गदागर की बातें दुरुस्त हैं। इसलिए गदागर से कहने लगा, जनाब मेहतरमा, छिलके और खाल उतार कर साफ साफ कहो कि आप कितनी रकम के एवज अपनी रजामंदी का इजहार करोगे, ताकि मेरा पीछा ना करो और अपने काम में मशगूल हो जाओ। गदागर ने कहा, मेरी रकम चोरी की और मुझे सिवाय गिदागरी के कहीं का न छोड़ा।
बल्कि तुम इस रकम की बदौलत इस मर्तबे पर पहुंचे। अगर तुम सच पूछते हो तो शर्माओ, मेरा था और काम तुमने किया। अगर तुम्हारा असबाब आधा आ बांट ले तो मैं भी तुम्हारी तरह मालदार बन सकता हूं। हाजी बिलाल ने कहा, अब तुम खुद ही देख रहे हो कि कितने बेइंसाफ इंसान हो। गिदागर ने कहा, बेइंसाफ तो तुम खुद हो कि एक नाबीना गिदागर की रकम छीन ली। मैं उस दिन तुम्हारे लिए रहमत का फरिश्ता था, मगर अब अजाब का फरिश्ता हूं। अगर तुमने उस दिन बुराई ना की होती तो आज गिरफ्तार ना होते। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी बात की तरदीद करो, वरना मेरा हक अदा करो। या फिर अब भी हो सकता है कि मेरी जिंदगी के 3 साल मुझे लौटा दो, ताकि जवान तरोताज़ा बनकर अपने कामकाज के लिए जाऊं और अपनी रकम से तिजारत करूं। हाजी बिलाल निहायत परेशान था कि उस बदमजाज गदागर से क्या कहे। उसने कुछ सोचा और कहा, मैंने जिस दिन तुम्हारी रकम उठाई थी तो मैं तुमसे भी ज्यादा बेरो मददगार और मुस्तहिक था। मेरी रकम मुसाफिर खाने में चोरी हो गई थी जो 1300 दिनार थी। इसलिए इस हादसे ने मुझे इस काम पर मजबूर कर दिया और तुम्हारी रकम बतौर कर्ज ले ली। मगर अब तुम्हारी बातें दुरुस्त नहीं हैं। मैं तुम्हें जवान ना बना सकता हूं और ना ही अपना नस्वार सरमाया तुम्हें सौंप सकता हूं। अगर मैंने उस दिन बुराई की है तो तुम आज बुराई कर रहे हो। हां, मैं अपनी बुराई से पशेमान हूं, इसलिए तुम भी बेइंसाफी ना करो। अलबत्ता मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि तुम्हारी खुशहाली के लिए हमारे पास जो कुछ मौजूद है एक दूसरे पर रख दें और शरीक में काम करंटली कर दें। तुमने गदागरी की है और मैंने चोरी की है। हम दोनों का काम एक दूसरे से मिलता जुलता है। शायद तुम अकेले अनाज की फरोख्त ना कर सकोगे, मगर मैं ये काम कर सकता हूं। अगर हम दोनों अच्छे इंसान बनकर रहे तो हमारी खूब गुजरेगी। हां, ये तो तुमने ना बताया कि तुम्हारा नाम क्या है। गदागर ने कहा, राशिद। हाजी बिलाल ने कहा, बहुत खूब, मैं बिलाल हूं। हमारे पास जो कुछ है इकट्ठा मिला लेते हैं और अपना तिजारत का नाम बिलाल और राशिद अनाज फरोश रख लेते हैं। क्या आप राजी हो? गदागर ने कहा, अब एक चीज बाकी रह गई है। मेरी कुछ रकम नौमान के पास है। अगर उसे भी अपने हमरा शामिल कर लें और तीनों हम नानो नेमत बांधें तो खूब गुजरेगी, बल्कि नौमान का काम भी चल पड़ेगा। उसने भी बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की हैं। बिलाल ने पूछा, ये नौमान कौन है? गदागर ने कहा, नौमान वही शख्स है जिसने तुम्हारी रकम और गठरी मुसाफिर खाने में चोरी की थी, बल्कि उसने भी तुम्हारे ख्याल के मुताबिक वो रकम बतौर कर्ज ली थी। क्योंकि नौमान मेरा वाकिफ था, उसने उसी रात मुझे तमाम वाकया बता दिया था और मुझे उसकी रास्तगोई बहुत पसंद आई। मगर मैंने अपनी रकम गुम होने की दास्तान किसी से ना बताई थी। अलबत्ता कुछ अरसा तक मस्जिद के खादिम से बद्दुआ करता और कई बार उसका इम्तिहान भी लिया, मगर उसका कोई गुनाह साबित ना हुआ। मैंने उसके बाद भी कई बार अपनी रकम वहां रखी, मगर गुम ना हुई। इसलिए समझ गया कि यह उसका कार नहीं है। अब नौमान भी उस शहर में मौजूद है। उसने भी तुम्हारी रकम अलग की है और उस शहर में तुम्हारी तलाश में आया है। बल्कि मैं तो समझता हूं कि नौमान तुमसे बेहतर है कि तुमने मेरी तलाश में एक कदम भी ना उठाया। मैं भी उसके हमरा इसीलिए आया था कि खुदा करे अपनी थैले तलाश कर लूं। अब जबकि तुमने मुसाफिर खाने में अपनी आसानी के गुम होने का बताया तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि दरवाजे के तख्ते किस खूबसूरती से आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह हम 3 अफराद भी इकट्ठे मिलकर खाएंगे, पिएंगे और तिजारत करेंगे। हाजी बिलाल ने कुछ सोचा और कहा, अच्छी तजवीज़ है। मैंने अपनी रकम उसे बख्शने का फैसला कर लिया है। अब आओ ताकि नौमान के पास चलें। जब दोनों नौमान के पास पहुंचे तो बिलाल ने देखा कि यह नौमान तो वही शख्स है जो पराए शहर में उसके हमरा रहता था, मगर वहां उसने अपना नाम तब्दील कर रखा था। तीनों अफराद अपनी गुज़श्ता रुसवाई, पशेमानी और बेसुर्व सामानी के बावजूद सर जोड़कर बैठ गए और कहने लगे, अब गुज़श्ता वक्त को भूल जाओ और बेहतर काम करें। उन्होंने अपना सरमाया एक दूसरे पर रख दिया और अनाज की बड़ी दुकान बना ली, जिस पर लिख दिया, बिलाल, राशिद और नौमान अनाज फरोश। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी?